موٹر سائیکل کے شوقین افراد کے لیے بری خبر، 70 سی سی موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد عام شہریوں کے لیے موٹر سائیکل خریدنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ غریب کی سواری بھی اب جیب پر بھاری، عوام کے لیے 70 سی سی موٹر سائیکل خریدنا بھی مشکل۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جہاں دیگر اشیاء کی قیمتوں کو متاثر کیا ہے، وہیں اب موٹر سائیکل بھی اس کی زد میں آ گئی ہے۔ 70 سی سی موٹر سائیکل کی قیمت میں 1500 روپے سے لے کر 3000 روپے سے زائد تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں موٹر سائیکل کا حصول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، جو کبھی عام آدمی کی سواری سمجھی جاتی تھی۔ اصل مسئلہ یہ نا الیکٹرک والا جو ہے نا، اس چکر میں ہم لوگ خود بھی آئے ہیں، کیونکہ پیٹرول کے اتنا زیادہ جو ہے نا پریس بڑھ چکا ہے، تو غریب آدمی کے لیے ابھی مشکل ہے، جینا بھی مشکل ہے۔ مہنگی ہو گئی ہے، لینے آیا تھا مگر بجٹ سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ 1,20,000 روپے کے ریٹ چل رہے ہیں، اس کے پیٹرول ویسے بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ دوسری جانب تاجر رہنما عبداللہ شاری کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ شپنگ اور انشورنس اخراجات میں اضافہ ہے۔ دیکھیے پیٹرول کی جو قیمت بڑھی ہے 322 روپے ہونے کے بعد، کیونکہ ہمارے یہاں دنیا میں اس وقت جنگیں بھی ہو رہی ہیں اور شپنگ چارجز میں اضافہ ہوا، انشورنس میں چارجز میں اضافہ ہوا، اور چائنا کی طرف جو ہے جو مال روک لیے گئے، تو اس کی وجہ سے فی الحال موٹر سائیکل کے اوپر 1500 سے لے کے 3500 تک کا اضافہ ہوا۔ مہنگائی کے باعث شہریوں کے لیے سستی سواری کا خواب مزید دور ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ شہر قائد میں مسائل کے انباء، لیاری میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لیاری بکرا پیڑی سے گارڈن جانے والا روڈ تباہ حال ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 5 سے 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اب تک اس کی مرمت نہیں کروائی جا سکی۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں انفراسٹرکچر کی حالت بہتر نہیں بنائی جا سکی، لیاری بکرا پیڑی میں سڑکیں تباہی کی داستان سنانے لگی۔ تباہال انفراسٹرکچر کے باعث شہری اذیت سے دوچار، سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ گڑھے پڑنے کے باعث گاڑیاں ہچکولے کھانے لگی۔ لیاری سے گارڈن جانے والا روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا سڑک 6 سال سے تباہال ہے، انتظامیہ کہیں نظر نہیں آتی، کوئی پرسان حال نہیں۔ ٹوٹی پوٹی سڑکوں کے باعث یہاں ٹریفک کا شدید دباؤ رہتا ہے، شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ روڈ کو ہے تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں، اسی طرح کھڈے بنے ہوئے ہیں، سب جو ہے نا بندے آنے جانے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ جو درمیان میں انہوں نے نالا بنایا ہے نا، یہ بہت غلط بنایا ہے۔ ایک تو اس کی صفائی نہیں ہوتی، کھڈے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھڈے ہوتے ہیں اور آدمی کو پتہ نہیں لگتا بھی کہاں سے بائک نکالنی، کیا کرنا، بچے گر جاتے ہیں، بوڑھے گر جاتے ہیں۔ میں خود گرا ہوں، جو بات ہے مسئلہ یہ ہے، میں تو یہ میئر کو بولتا ہوں مہربانی کر کے لیاری پہ توجہ دیں۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان درینہ مسائل کا مستقل حل نکال کر انہیں مشکلات سے نکالا جائے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ کراچی نے شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کمر کس لی ہے۔ لیاری میں مرزا اعظم خان روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لیاری میں فوڈ اسٹریٹ بنانے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ مرتضی وہاب نے ہب ڈیم سے متعلق خبروں پر اپوزیشن کو بھی ہاڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ تفصیلات شیر مختار کی اس رپورٹ میں۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ان ایکشن، لیاری میں مرزا اعظم خان روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، بولے لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ پر عمل درآمد جاری ہے۔ انہوں نے لیاری میں فوڈ اسٹریٹ بھی بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہاں کے مقامی کھانے کے لیے اسی ندی کے کونے پر 7 ایکڑ کی جگہ ہے، اس 7 ایکڑ کی جگہ پر انشاءاللہ ایک نئی بہترین فوڈ اسٹریٹ KMC بنانے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق، سندھ حکومت کے احکامات کے مطابق، تاکہ سیر و تفریح کی فیسلٹی بھی ہو اور یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی مل سکے۔ اور میں چاہوں گا کہ اس کے اندر ہم فوکس کریں لوکل کھانوں پر۔ مرتضی وہاب نے ہب ڈیم سے متعلق خبروں کو افواہ قرار دے دیا، کہا کہ کراچی والوں کو پانی مل رہا ہے لیکن مخالفین کو کام سے تکلیف ہو رہی ہے۔ شہر کو کمرشلائز کس دور میں کیا گیا تھا یہ سب جانتے ہیں۔ یہ لوگ کراچی کی ترقی کے دشمن ہیں، یہ لوگ کراچی کے دشمن ہیں۔ کبھی جا کے کہتے ہیں وہ کنال بنی نہیں، کبھی جا کے کہتے ہیں کنال ٹوٹ گئی، ابھی جا کے انہوں نے کہا کنال استعمال نہیں ہو رہی۔ ابھی یہ نہیں کہا انہوں نے کنال ٹوٹ گئی ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کنال استعمال نہیں ہو رہی۔ وہ میرے بھائی 2 کنالز بنائی ہیں، آپ کی ویڈیو جو میں خود دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں دونوں کنال نظر آ رہی ہیں، اور آپ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ اس کنال سے پانی چوری ہو رہا ہے۔
मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि 6 अप्रैल से स्पेंसर आई अस्पताल में OPD का आगाज कर दिया जाएगा। वहाँ फ्री आई सर्जरी की सहूलत भी दस्तयाब होगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। नाजिमाबाद गोल मार्केट में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सड़क की तामीर में रुकावट बनने वाले पुख्ता ढांचों को मिसमार किया जा रहा है ताकि इलाके में ट्रैफिक की रवानी और तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जा सके। मज़ीद तफसीलात जानिए रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। शाहराहों को वुसअत देने पुख्ता तामीर का अज़्म। नाज़िमाबाद की मसरूफ़ तरीन गोल मार्केट और गिरदो नवाह में इंतज़ामिया हरकत में आ गई। की तामीर के मिशन में हायल पुख्ता तजावुज़ात को हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन का बुनियादी मकसद स्टार बेकरी से बड़ा मैदान तक 1.25 किलोमीटर तवील सड़क की हमवार तामीर को यकीनी बनाना है। फोकल पर्सन नाज़िमाबाद टाउन ज़हीर अहमद खान बोले, 1.25 किलोमीटर तवील सड़क क्लिक के ताउन से तामीर कर रहे हैं। इसकी राह में आने वाली पुख्ता तजावुज़ात को मिसमार किया जा रहा है। इंक्रोचमेंट की वजह से ये काम को स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे पीछे एक्सीवेटर टाउन चेयरमैन साहब की हिदायत पे काम कर रहा है। इस रोड को स्पेस को चौड़ा किया जा रहा है क्योंकि दोनों साइड में पोल एक्स्ट्रा बाहर है, जिसकी वजह से पीछे इंक्रोचमेंट हो गई थी, लेकिन अब हम पोल के पीछे का भी एरिया उसको भी कवर कर रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट नाज़िमाबाद टाउन के अमले का कहना था कि रोड की तामीर में हायल बेशतर तजावुज़ात गिरा दी गई हैं। 2 से 3 रोज में सड़क को तामीर करने के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। इंक्रोचमेंट की तरफ से हम खड़े हैं, इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, और जितनी भी राइल रुकावटें हैं सारी हम इसको दूर कर रहे हैं और जितने तजावुज़ात हैं उन सबको हटा के तो और रोड को जो है बिल्कुल स्मूथ कर रहे हैं ताकि कोई रुकावट ना रहे और रोड बनाने में कोई परेशानी ना आए। इलाका मकीनों ने तजावुज़ात के खात्मे और नई सड़क की तामीर को खुशाइंद करार दिया है। ताहम इंतज़ामिया के लिए असल चैलेंज काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करना और दोबारा तजावुज़ात को रोकना होगा। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 4,864 पॉइंट्स कमी से 1,46,842 पर बंद। दौरान कारोबार 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, अरबों रुपए डूब गए हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का शिकार। सरमायाकारों ने आगाज कारोबार से ही फरोख्त को तरजीह दी, जिसके बायस इंडेक्स में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स एक मौके पर 7,000 से जायद पॉइंट्स गिर गया और 1,44,656 की कम तरीन सतह तक पहुँच गया। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में बेहतरी तक मार्केट में उतार चढ़ाव और दबाव का सिलसिला जारी रहने का खदशा है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल जो तब्दील होती जा रही है, ईरान का कभी कुछ बयान आ जाता है, ट्रम्प साहब कुछ और बयान दे देते हैं, तो इसकी वजह से कमोडिटी मार्केट पे बड़ा असर पड़ता है। कमोडिटी मार्केट बिल्कुल डाउन होती जा रही है। जैसे ऑयल हुआ, आपका ऑयल तो अब चला जाता है, इसकी वजह से दूसरी स्टॉक मार्केट्स में जो है असर पड़ता है, तो इसका असर स्टॉक में भी नज़र आ रहा है। और यहाँ के जो सरमायाकार है वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि वो आया परचेसिंग करे या सेल करे, तो इसी वजह से वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है और मार्केट नीचे होती जा रही है। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 4,864 पॉइंट्स कमी के बाद 1,46,842 की सतह पर बंद हुआ, जिसके नतीजे में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वाटर कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। सुपर हाईवे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा कार्रवाई करते हुए होटल्स के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इमरान मोइन के मुताबिक गैर कानूनी कनेक्शंस की वजह से इदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो आपको अपडेट करें, वाटर कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। पिछले दिनों हमने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। सोराब गोट का एरिया है, M9 का इलाका है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो होटल्स हैं और दीगर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर इलीगल कनेक्शंस थे, तो हमने MD साहब की हिदायत के ऊपर वहाँ पर इलीगल कनेक्शंस को जो है वो डिस्कनेक्ट किया है और उनके साथ साथ उनको चालान के लिए भी कहा है कि वो चालान भरें ताकि उनके उसको रेगुलाइज किया जाए। नॉर्दर्न बाईपास के करीब 48 इंच खुतर पानी की लाइन का मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू। लाइन की मरम्मत होते ही बल्दिया टाउन की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी।
CO वाटर कॉरपोरेशन की अहमद अली सिद्दीकी साहब की खुसूसी हिदायत थी कि हंगामी बुनियादों पे ये पानी की लाइन का जो काम है वो मुकम्मल करके बल्दिया की पानी की जो सप्लाई वो बहाल कर दी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला तवक्कात है पूरी वाटर कॉरपोरेशन की जो टीम में मौजूद है, चीफ इंजीनियर हमारे WTM और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मुतलका है वो साइट पर भी मौजूद है, तमाम काम की निगरानी कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आज रात हम इस लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल करके कल जो बल्दिया की पानी की जो सप्लाई है वो हम बहाल कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग की जानिब से गवर्नर निहाल हाशमी के एजाज़ में अशाया तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के काउंसलर्स और सफारती अमले ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शायान अली से। शायान बताइए। बिल्कुल, मोरक्को के एजाज़ी कौंसल जनरल मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की जानिब से जो है हम देख रहे हैं कि गवर्नर सिंध के मुंतखब होने के बाद जो है वो अशाइया रखा गया, जिस पर जो है बड़ी तादाद में कौंसल जनरल्स ने भी शिरकत की, जबकि गवर्नर सिंध ने भी शिरकत की। और इस वक्त हमारे साथ जो है मिर्ज़ा इश्तियाक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बड़ी खुशगवार जो वो शाम रही, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम देख रहे हैं कि मसले मसाइल पर बात रही और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ताजरों ने भी शिरकत की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो बिसाइड्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिज़नेस फोरम का मैं मरकज़ी सदर भी हूँ। आज मेन मकसद ये था कि उनके ऑनर में हमने गवर्नर साहब के ये इवनिंग रखी थी ताकि एक तरफ उनको मुबारकबाद दी जाए उनके गवर्नर बनने के ऊपर, और ये मुबारकबाद जो है बाहर के कौंसल जनरल्स हैं वो भी उनको दें और अपने बतलाएं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। और साथ में आज बिज़नेस कम्युनिटी के भी जो बहुत मशहूर शख्सियात थी वो सब यहाँ पे मौजूद थे। आरिफ हबीब साहब, बशीर जान मोहम्मद, तब्बा साहब और दूसरे बहुत से लोग, और तकरीबन तमाम ही कौंसल जनरल्स जो थे, चाहे वो रशिया के हो, उनका ताल्लुक़ हो, जापान से हो, दीगर ममालिक के, वो सब यहाँ पे मौजूद थे और सब ने उन्हें मुबारकबाद दी गवर्नर साहब को और ये कहा कि सर हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे ताकि सिंध और कराची जो है उसकी हम बेहतरी आए, तरक्की हो, और आपको सपोर्ट करेंगे। और उनको विश की है कि आप एक सक्सेसफुल गवर्नर हों, और गवर्नर साहब ने भी यहाँ पे बतलाया है कि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़ास तवज्जो देंगे, कराची की बेहतरी के लिए देंगे इंशाल्लाह, और जो कराची को जो मसाइल पेश हैं इंशाल्लाह उसके लिए भी अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि बेग हाउस जो है वो हमेशा के लिए इस तरह के इवेंट्स के लिए जो है वो खुला रहता है कि जिस पे कराची की तरक्की हो या कौम की तरक्की हो, मुल्क की तरक्की हो, तो उसके लिए हमेशा इस तरह के गेट टुगेदर्स होते रहते हैं। तो क्या कहेंगे कि मज़ीद भी इस तरह के इवेंट्स और गेट टुगेदर्स जो है जारी रहेंगे? सर देखिए, हमारे घर के दरवाजे जो है ना हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए खुले हुए हैं, जिसका ताल्लुक़ सिंध से हो, जिसका ताल्लुक़ कराची से हो, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो। और यहाँ पे इंशाल्लाह हम जो भी दोस्त हैं उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं तो वो सब यहाँ पे जमा होते हैं और बड़ी खुशी होती है हम इसके लिए कि मुल्क के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो इस वक्त मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी मौजूद हैं जो कि रुकन कौमी असम्बली, इनसे भी बात करते हैं। इनकी जानिब से भी जो यहाँ पर गवर्नर साहब को वेलकम किया गया है। सर, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि बेग हाउस जो है वो हमेशा के लिए जो वो खुला रहता है उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान और कराची की तरक्की के लिए बात करते हैं और हमेशा इस तरह के इवेंट्स होते हैं। आज भी एक ज़बरदस्त जो वो इस अशाइया रखा गया है गवर्नर सिंध के वेलकम करने पर, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज पूरे पाकिस्तान की टॉप की बिज़नेस कम्युनिटी जिसमें आरिफ हबीब जिन्होंने PIA ख़रीदा है और दूसरे बशीर जान मोहम्मद, तब्बा साहब, मारूफ ताजिर, तमाम डिप्लोमेट्स आए हुए थे जो UK का और जर्मनी का और फ्रांस का और तमाम। आज जो है गवर्नर साहब मिलना चाहते थे बिज़नेस कम्युनिटी के टॉप के लीडर्स और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के। जिसका मकसद ये था कि उनसे एक रब्ता रखें, उनको हम अपने मुल्क में हालात आजकल ख़राब हैं तो हम उनको दावत दें। और मैंने अपनी तकरीर में कहा कि जब चैलेंजेस आते हैं तो साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इससे सर बड़ा फ़र्क पड़ेगा और आवाम को भी जो है इससे फ़ायदा होगा। जबकि इसके साथ बताता चलूँ कि आज की ये खूबसूरत शाम जो है गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी के नाम की गई, जिस पर जो है वो हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेट्स की जानिब से बड़ी तादाद में शिरकत की गई और इस दौरान जो है वो तरक्की के लिए भी कुछ यहाँ पर गुफ्तगू की गई। जी।